ہمارے پاس سندیپ کی صورت میں ایک بہت بڑا راز موجود ہے. اس کے بارے میں ڈپارٹمنٹ کو صرف اتنا بتاؤ کہ اس سے تفتیش جاری ہے اور بس. تم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، میں کل صبح یہی کام کروں گا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا. ہم یہی باتیں کرتے ہوئے ماڈل ٹاؤن پارک کے پاس بنے مختلف ریسٹورانوں کے پاس چلے گئے. کھانا کھا لیں سر؟ میرے خیال میں آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا. دوسرا، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ سندیپ میں آخر ایسی کیا بات ہے. آپ اس بارے میں کیا سمجھے ہیں؟ نصیر نے گھوم پھر کر اپنی ہی دلچسپی کی بات کی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. چلو بیٹھو. میں نے ایک ریسٹوران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے کار پارکنگ میں لگا دی. ہم کار سے اتر کر اوپن ایئر ہی میں ایک کونے کی جانب بڑھ گئے. ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو اس نے میری طرف دیکھ کر دھیمے سے پوچھا، سر وہ سندیپ، وہ بھارت کی تربیت یافتہ لڑکی ہے اور اس جیسی کافی ساری لڑکیاں یہاں موجود ہیں. ممکن ہے دوسرے شہر میں بھی ہوں یا اسی شہر میں. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے میری جان. انہیں تلاش کرنا ہوگا کیونکہ سندیپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اب اس کا نیٹ ورک کیا ہے، کیسے ہے، اصل میں ان کا ٹارگٹ کیا ہے، یہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا. لیکن مجھے امید ہے کہ میں وہ کچھ حاصل کر لوں گا کیونکہ میرے پاس بانیتا کنور کی صورت میں ایک بہت بڑا مددگار موجود ہے. وہ اس تلاش میں میری مدد کرے گی. کیا وہ معلوم کر پائے گی اسے سچ اور جھوٹ؟ اس نے شک کا اظہار کیا تو میں نے کہا، سچ جھوٹ تو رہا ایک طرف، وہ پتہ چل جائے گا. سندیپ پر تشدد کسی بھی صورت میں کارگر نہیں ہے. کیوں؟ وہ چونکتے ہوئے بولا. اس لیے کہ اس کی تربیت ذرا مختلف انداز میں کی گئی ہے. اور میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا. دوسری طرف اروند سنگھ تھا. آپ کدھر ہو اس وقت؟ ایسے ہی میں باہر نکلا ہوں، ایک دوست کے ساتھ. خیر ہے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا. وہ شخص جسے ہم کئی دنوں سے تلاش کر رہے تھے، وہ اس وقت آپ کے کہیں قریب ہے. اس نے کہا تو میں نے سامنے بیٹھے ہوئے نذیر طارق کو دیکھا اور فوراً ہی بڑے محتاط انداز میں پوچھا، کتنے قریب؟ میں ختمی نہیں کہہ سکتا لیکن وہ 20 سے 25 گز کی رینج میں ہے. اس نے پرجوش لہجے میں کہا. یہ تمہیں کیسے؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، کئی دنوں سے ہم 3 بندوں کی محنت ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. آپ فون کریں اسے، جیسے ہی رابطہ ہوا وہ مزید کلیئر ہو جائے گا. فوراً رابطہ کریں. وہ تیزی سے بولا اور فون بند کر دیا. میں نے فون کان سے ہٹایا تو نذیر طارق نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا، سر جی خیر تو ہے؟ ایک لمحے کے لیے مجھے خود بھی سمجھ نہ آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں. مجھے یوں لگا جیسے یہ نذیر طارق ہی وہ شخص ہے، مگر جب فاصلہ میرے ذہن میں آیا تو صاف ہو گیا. میں نے ایک لمحے کے لیے خود پر قابو پایا اور اس سے پوچھا، وہ جو تمہارے آدمی ہیں کہاں ہیں اس وقت؟ وہ 5 منٹ کی دوری پر ہیں، میرے ارد گرد ہی ہیں اس وقت. اسے تیزی سے جواب دیا. انہیں بالکل قریب بلا لو، ممکن ہے ان کی ضرورت پڑے. میں نے انتہائی سکون سے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور فون نکالنے لگا. اسی لمحے میں نے باس کے نمبر پر کال کر دی. ایک طرح سے رابطہ ہو گیا. وہ فون نہیں ریسیو کر رہا تھا یہاں تک کہ کال جاتے ہی ختم ہو گئی. میں نے پھر ٹرائی کیا. تب میں نے دوسری بیل پر فون ریسیو کر لیا. میں اٹھا ایک خالی گوشے کی جانب بڑھ گیا. ہیلو، میں نے انتہائی طنزیہ لہجے میں جان بوجھ کر کہا تاکہ وہ بات کرنے پر آمادہ ہو جائے. کیسے یاد کر لیا تم نے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا. ارے یار، میں نے سوچا تو نے مجھ تک کیا پہنچنا ہے، بات کرنے سے بھی گئے. کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں. میرے یوں کہنے پر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر بولا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم بہت شارپ اور چالاک ہو. تم جس طرح مجھ سے اوجھل ہوگے میں اس کی داد دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم تک پہنچ نہیں پاؤں گا. اب میں تم پر ہاتھ ڈال کر ہی تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے. کاش تمہارا یہ ہاپ پورا ہو جائے. میں نے اپنا طنزیہ لہجہ نہیں چھوڑا. میرا یہ ہاپ بہت جلد حقیقت میں بدلنے والا ہے جمال. تم جتنا چاہے چھپ جاؤ، میں نے تمہیں پکڑ لینا ہے. اس نے پھر کہا، ارے یہ تو مایوسی والی باتیں ہیں، حالی ہولی دھمکیاں ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے خود ملنا چاہتا ہوں تو پھر آر کیوں؟ آؤ ملو. لیکن اب ہوگا پتہ کیا؟ تم میری بات کا جواب دینے کی بجائے یہ کہو گے کہ آواز نہیں آ رہی یا فون بند کر دو گے. میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور خود فون بند کر دیا. اس کے ساتھ ہی میں نے اروند سنگھ کا نمبر ملایا.
उसे फौरन ही मेरी कॉल पिक की और कहा, मैंने आपको मैसेज भेज दिया है, उसकी डायरेक्शन क्या है? वो आपके पास ही कहीं है। ओके, मैंने कहा और फौरन मैसेज बॉक्स खोला। अरविंद का पैगाम मौजूद था। मैंने इसे कॉपी किया और नक्शा खोलकर उस पर डाल दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो जगह मेरे सामने आ गई। एक खास नुक्ते पर सुर्ख स्पार्क होने लगा। मैंने अपने तौर पर समझने की कोशिश की। वो इसी मार्ग के ठीक है कहीं आसपास था। मैं उस समझ पड़ने लगा। अगर मैं जरा इधर उधर होता तो वो स्पार्क मध्यम हो जाता और सीध में आ जाता तो वो तेज हो जाता। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर रोड पर आ गया। उसी लम्हे मेरे पीछे नजीर तारिक आ गया। मैं एक लम्हे में उसे बात समझाई तो वो मेरे साथ ही उसी समझ को समझने लगा। मैं बहुत ज्यादा देर तक फोन पर निगाहें जमाकर नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने उसे फौरन गाड़ी लाने का कहा। वो गाड़ी की जानिब भागा। 3 मिनट से भी कम वक्त में वो कार लेकर मेरे बराबर आ गया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया। हम उस रेस्टोरेंट से 20 गज आगे निकले होंगे कि स्पार्क तेज हो गया। अब मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो कौन होगा। मेरे अंदर दौराने खून बढ़ गया। सनसनी मेरे अंदर फैलकर मुझे बेचैन किए हुए थी। वो बंदा मेरे इंतहाई करीब था। मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था। लम्हा बलम्हा मेरा हिजान बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। बहुत सारे लोग मसरूफ थे। वो एक ओपन एयर रेस्टोरेंट ही था। छोटे से हॉल के अंदर बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे थे। उनमें जालियां थी। नजीर तारिक अपने लोगों को तेजी से हदायत दे रहा था कि वो कहां पहुंचे और उन्हें क्या करना है, जबकि मेरी हालत बड़ी अजीब हो रही थी। मैं बास के इतने करीब होकर भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। मैंने वहां मौजूद हर एक चेहरे को देखना शुरू कर दिया, मगर मुझे कोई भी एक ऐसा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था जिस पर शक भी किया जा सके। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं इसे दोबारा फोन करूं। कम से कम इनमें से ये तो तहसीस हो जाएगी कि जो बंदा अपने कान के साथ सेल फोन लगाए हुए होगा उसे निगाहों के सामने रख लूंगा। मैंने नजीर का फोन बंद कर दिया और हदायत की कि उसे क्या करना है। उसने अपने लोगों से कहा और खामोश हो गया। मैंने बास को दोबारा कॉल मिलाई। चंद लम्हे बाद ही उसने फोन रिसीव किया। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैंने तेजी से कहा, फिर फोन बंद कर दिया ना तुमने? यार इतने डरपोक हो तुम। क्या मैं फोन में से हाथ बाहर निकाल कर तुम्हें पकड़ लूंगा? फोन तुमने बंद किया था, उसने गुस्से में कहा। अब तुम झूठ भी बोलोगे। खेल में झूठ बोलना गलत बात है ना? मैंने जानबूझकर बात बढ़ाई और तेजी से हर तरफ देखने लगा। कोई आदमी भी मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसने अपने कान से फोन लगाया हुआ हो। मुझे एकदम से हैरत हुई। मैंने नजीर तारिक को इशारा किया कि वो कार से बाहर निकले और इर्द गिर्द देखे। वो बाहर निकल गया क्योंकि मुझे बाहर का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। खेल तो मैं तेरे साथ खेलूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, उसने इस बार गुस्से में ही कहा। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आओ, मेरे साथ आंख मचोली नहीं, सीधे सीधे हाथ में हाथ डालो। फिर तुम क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा। इससे पहले कि वो जवाब देता मेरे फोन पर कॉल आना शुरू होगी। वो अरविंद की कॉल थी। मैंने बजाय इंतजार करवाने के कॉल ही काट दी और अरविंद की बात सुनने लगा। वो आपसे सिर्फ 1 और 1.5 गज के फासले पर है, आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? उसने जोश भरे अंदाज में चीखते हुए कहा। क्या? इस बार हैरान होने की बारी मेरी थी। इतने फासले के दरमियान आपके दाएं जानब, उसने उसी लहजे में कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने फोन का नक्शा निकाला। वो इंतहाई तेजी से स्पार्क कर रहा था। मैंने फोन डैशबोर्ड पर रख दिया और पूरे गौर से अपने इर्द गिर्द देखा। मुझसे तकरीबन 5 गज के दौरान फासले पर नजीर तारिक खड़ा था। उसके अलावा कार के आसपास गिनती के 6 आदमी थे। एक गुब्बारे वाला, 2 सिक्योरिटी गार्ड जो रेस्टोरेंट में मेन गेट पर थे, एक मलंग किस्म का नशेई सा दीवार और सड़क के दरमियान दरख्त के पास बैठा हुआ था। एक रेड़ी लगाए नारियल पानी बेच रहा था और उससे जरा फासले पर बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने उठाए बेच रहा था। इस खिलौने की रंग बिरंगी रोशनियां निकल कर रही थीं। कुछ देर बाद किसी खिलौने से आवाजें भी आने लगती। अरविंद के बताने के मुताबिक इन्हीं में से कोई बंदा हो सकता था। मैंने कॉल करने वाले के फोन उठाया ही था कि फिर रख दिया। मैं सोचने लगा कि बाहर का शोर मैंने कॉल में सुना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने बाहर का मंजर अपनी आंखों में जज्ब कर लिया और आंखें बंद कर ली। मैंने बाहर के मंजर का तस्वर किया तो चौंक गया। मैंने ऐसा ही मंजर पहले भी देखा था। मैं बादलों में से एकदम एक शहर की सड़क पर उतरा था।
वहां हर शख्स का रंग जुदा था। वो रंग लहरों की सूरत में ऊपर कहीं जाकर तहलील हो जाता था। मेरे सामने वही 6 लोग थे। उनमें से सिर्फ एक शख्स में से लहरें ऊपर की जानिब उठ रही थी और वो था खिलौने बेचने वाला। मैंने पट से आंखें खोल दी। मैंने उसे देखा। वो बेनियाज सा आते जाते लोगों को देख रहा था। वो हासा जवान और गंदगी रंग वाला था। उसके नैन नक्श वाज़िया दिखाई नहीं दे रहे थे। लंबे कद का वो काफी सख्त जान नजर आ रहा था। मैंने उसकी जानिब देखते हुए अपना फोन उठाया और तारक नजीर को कॉल की। जी सर, वो फौरन बोला। इधर उधर मत देखना, तुम्हारे दाएं जानिब एक खिलौने बेचने वाला है। बहुत ज्यादा एहतियात के साथ इसे पकड़ना है। मैंने तेजी से समझाया। ओके, उसने कहा तो मैंने फोन वही डैशबोर्ड पर रहने दिया। अपनी पिस्टल को टटोल कर निकाला, उसका सेफ्टी कैच हटाया और कार से नीचे उतर आया। मैं एकदम उसकी तरफ नहीं बढ़ा था। मैं कार से नीचे उतरा और एक लम्हे के लिए खड़ा हो गया। फिर इर्द गिर्द देखने लगा जैसे मुझे किसी का इंतजार हो। मैंने कनखियों से खिलौने बेचने वाले पर निगाह रखी। वो वहीं खड़ा रहा था। नजीर तारिक एक जानिब से बढ़ रहा था और दूसरी जानिब से मैं। हम कदम कदम बड़ी एहतियात से उसकी जानिब बढ़ रहे थे, यहां तक कि 2 कदम का फैसला रह गया। मैं उसके दाएं जानिब था और नजीर तारिक सामने की तरफ से बढ़ रहा था। मैं उसके पीछे चला गया। अगले ही लम्हे मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। मुझे एकदम झटका लगा, जैसे मैंने बिजली के नंगे तारों को छू लिया हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। एक लम्हे के लिए मेरी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होकर रह गई। उसने हाथ में पकड़े हुए खिलौने फेंक के नहीं, बल्कि उसी तरह सामने सड़क की जानिब भागा। उसके सामने नजीर तारिक आ गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी झटका लगा था, क्योंकि वो भी एकदम से हैरत ज़दा सा साकत हो गया था। उससे ये जरूर हुआ कि खिलौने बेचने वाला लड़खड़ा गया। मेरे पास यही वक्त था कि वो लड़खड़ा कर सीधा होता। यही दुरानिया मेरे पास था, वरना जिस तरह वो तेजी से निकला था, मुझे वो छल्लावे की तरह लगा था। जैसे ही वो सीधा होता, उसके बाद ही शायद ही मैं उसे पकड़ सकता था। मैंने अपना पिस्टल निकाला और यके बाद दिगरे 2 फायर कर दिए। दोनों उसकी पिंडलियों में लगे थे। उसकी लड़खड़ाहट खत्म हो गई। वो झूमा और सड़क पर जा गिरा। इंतहाई सूरत से मैं उसके पास जा पहुंचा। मुझे ये डर था कि कहीं कोई गाड़ी उसे न कुचल दे। मैंने उसे फिर हाथ लगाया। इस बार मुझे करंट नहीं लगा था। मैंने उसे बालों से पकड़कर उसका सर सड़क पर दे मारा। शायद चोट ज्यादा लगी थी। वो अधमुआ हो गया। मैंने उसकी गर्दन पर पांव रख दिया। नजीर तारिक नायलॉन की रस्सी ले आया। वो उसे बांधने लगा। फायरिंग की आवाज से बहुत सारे लोग मुतवज्जा हो गए थे। इन्हीं के साथ नजीर तारिक के मातहत भी वहीं पहुंच गए थे। वो बेहोश हो चुका था। मैंने उसे ले जाने का इशारा किया। उसके 2 मातहत आगे बढ़े और इन दोनों ने उसे सर और पैरों की तरफ से पकड़ा और कार तक ले गए। वो दोनों भी साथ में बैठ गए। उन्होंने इसे सीटों के दरमियान दबा लिया था। नजीर तारिक ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैं साथ में बैठने लगा। तब मेरी निगाह उन खिलौनों पर पड़ी जो अब भी सड़क पर पड़े हुए थे। मैंने एक मातहत को वो खिलौने साथ मिलाने का इशारा किया और कार में बैठ गया। हमारा रुख मॉडल टाउन वाले घर की जानिब था। इंतहाई तेज रफ्तारी से हम मॉडल टाउन जा रहे थे। हमें घर पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगना थे। इस दौरान नजीर तारिक ने अपने ऑफिसर्स को अपनी कार्रवाई के बारे में मतला कर दिया और जो जरूरी इमदाद समझ में आई वो मांग ली। उनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी था। उसे वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त लगना था, जबकि उसकी पिंडलियों से काफी ज्यादा खून बह रहा था। मैंने सबसे पहले अरविंद को कॉल की। मैं उसे पकड़कर ले जा रहा हूं। मैंने उसे इतला देकर इंतहाई एहतसार से बाकी भी बता दिया। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि वो आपके साथ साथ जा रहा है। आप ऐसा करें कि सबसे पहले इसका फोन अपने काबू में करें और उसकी बैटरी निकालकर उसे ऑफ कर दें। वो फोन किसी भी सूरत में किसी को नहीं देना। हम उसे समझना चाहेंगे। फहीम और सलेमान सुबह होने से पहले ही आपके पास पहुंच जाएंगे। और दूसरा, उसकी तस्वीर हमें पहली फुर्सत में भेज दें। मुमकिन है इस बारे में कुछ मजीद मालूमात मिल जाएं। उसने मुझे तफसील से कहा। ओके, बाकी बातें बाद में, हम घर पहुंच चुके हैं। मैंने उसे बताया। गाड़ी पोर्च में नहीं रुकी, बल्कि उसके पीछे की तरफ ले गए, जहां से सीधा रास्ता तहखाने में जाता था। वहीं दोनों मातहत उसे नीचे ले गए। जैसे ही उसे लटाया गया, मैंने सबसे पहले उसका सेल फोन टटोला। उसने सदरी नुमा जैकेट पहन रखी थी, जिसके अंदरूनी जेब में वो फोन था। उसके साथ महीन सितारें थी
जो उसके कानों के साथ मुंसलिक थी। बिल्कुल मक्खी के साइड की मानिंद 2 नन्हे स्पीकर थे। मैंने तारों समेत वो फोन अपने कब्जे में ले लिया। नजीर तारक उसके जख्म देखने लगा। वो खून रोकने की कोशिश में मसरूफ था। चंद मिनट मजीद गुजरे होंगे कि बाहर काफी सारे लोग आ गए। उनमें से एक डॉक्टर भी था। उसने आते ही उसका मुआयना शुरू कर दिया। ये मोइन साहब है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एक उधेड़ उम्र शख्स से तारुफ कराया गया। वो पतला सा था। उसने नजर की ऐनक लगाई हुई थी। वो मेरी जानब मुतवज्जा हुआ तो मैंने उसे तफसील बता दी। सारी बात सुन लेने के बाद उसने कहा, ये जो कुछ भी था इन्हीं खिलौनों की वजह से हो सकता था। मैं इसे देख लेता हूँ। जो भी हो मैं आपको बता दूंगा। ध्यान ये रखिएगा कि बंदा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था। क्या कर रहा है वो हमें पता चलना चाहिए। मैंने कहा तो उसने सर हिलाया और खिलौनों की जानिब मुतवज्जा हो गया। हर बंदा अपने काम की तरफ मुतवज्जा था। मेरा वहां कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने नजीर तारक को बताया और ऊपरी मंजिल की तरफ चल दिया। नया पैराग्राफ। जिस वक्त जसपाल ओगी पिंड के नजदीक पहुंचा उस वक्त सूरज गुरूब हो गया था। उसने हरप्रीत को सारी रुदात फोन पर बता दी थी। ऐसा उसने इसलिए किया था कि वो परेशान न हो। ओगी पिंड के लोगों को पता चल गया था कि वो निकदर की तरफ से आ रहा है। लोगों का एक हजूम उसके रास्ते में खड़ा था जो उससे काफी दूर से देख लिया था। वैसे भी उसे फोन पर मालूम हो गया था कि वो उनके पास आन रुका। लोगों ने जज्बाती होकर नाजेबाजी शुरू कर दी। वो कुछ देर उनका जोश देखता रहा। फिर कार में बैठे बैठे ही उसने माइक पर लोग उससे कहा, मुझे अगर पकड़ कर ले गए थे तो उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि मैं अपने गांव के एक गरीब बंदे के लिए लड़ा, उसके लिए आवाज उठाई। यही मेरा जुर्म था। ये अगर इस मुल्क में जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी गरीबों के नाम लगा दी है। अब देखो आप लोग अपनी ताकत। जैसे ही सब लोग इकट्ठे होकर थाने की तरफ चले गए वो सारे पुलिस वाले वहां से भाग गए। याद रखो अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता। ये सारे अफसर जो अवाम पर हुक्म चला रहे हैं ये अवाम के मुलाजिम हैं, हमारी और तुम सबके मुलाजिम हैं। ये अगर किसी पर जुल्म करते हैं तो इन्हें पकड़ो, इन्हें बताओ कि तुम हाकिम नहीं हमारे मुलाजिम हो। आज तक जो यहां से असेंबली के रुकन बनते रहे हैं उन्होंने अवाम को ये बताया ही नहीं कि वो सिर्फ अपने मफाद की खातिर लोगों से वोट लेते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आज से ही बता रहा हूं कि हमने इन हाकिमों को अपना मुलाजिम बनाकर रखना है। ये लोग हमारी खिदमत के लिए रखे हुए हैं। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है कि किसे वोट देना है और किसे नहीं। जसपाल ने इतना ही कहा और माइक वापस कर दिया। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। वो अपने घर के पास पहुंचा तो वहां भी लोगों का हजूम था। वो गेट के पास कार रुकवाकर कार से बाहर निकल आया। उसके कपड़े और चेहरा अभी तक खून आलूद था। लोगों की नजरें उसे तहसीन से देख रही थी। जसपाल ने वही बातें यहां भी की तो एक बंदा बड़ा जज्बाती होकर बोला, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार इलेक्शन हमने जीतना है। हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। तुम्हारा शुक्रिया जसपाल कि तूने हमारे पिंड की लाज रखी। शुक्रिया मेरा नहीं, अनुजीत सिंह का अदा करो जिसे आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दिया हुआ है। ये तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि तुम लोग उसकी मेहनतों का नतीजा क्या देते हो। ये कहकर वो फिर से कार में बैठ गया। कार सीधी पोर्च में जा रुकी जहां हरप्रीत इसके इंतजार में थी। कुलजीत कुंवर ड्राइंग रूम में खड़ी उसे देख रही थी। वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो उसे देखकर रोने लगी। उसने हरप्रीत की तरफ देखा। हरप्रीत ने आंखों से यही इशारा किया कि बेबे को कुछ नहीं बताया। वो उससे अलग होकर बोला, फुफ्फो जी मैं अपने कमरे से होकर आता हूँ। ठीक है पुत्र जा, फिर जल्दी आ, मैं तेरे साथ बैठकर प्रसादे चखने हैं। ये सुनते ही जसपाल अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नया पैराग्राफ। मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आया तो कमरे में वो महसूस महक फैल गई जो सुंदर लाल ने मुझे तोहफा दी थी। अगरचे मैंने बास को पकड़ लिया था और शायद अब इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन नहाने के दौरान मुझे एकदम से ख्याल आया, संदीप कुंवर से मैंने अभी तक कोई मालूमात ही नहीं ली थी। जो कुछ उसने बताया था वो फकत तस्दीक थी। अभी बहुत कुछ उससे उगलवाना बाकी था और सिर्फ इसका एक ही तरीका था। मैंने उसे कुछ वक्त देना था, बाकी सारा काम ये महक कर देती। मैं अच्छी तरह तैयार हुआ और फिर अपने बेड पर बैठकर वानीता कंवर को फोन कर दिया, यार कुछ खाने पीने को है, कोई भूखा बंदा फरियाद कर रहा है। मैं खुशगवार बोर्ड में पूछा, हमने तो खाना खा लिया है।
बाकी उठाकर नीचे दे दिया। हमें क्या पता था कि तुम अब तक भूखे फिर रहे हो। उसने हंसते हुए कहा, चलो अब कुछ करो। मैंने कहा तो वो बोली, अच्छा मैं कुछ करती हूँ, उसने कहा और उसके साथ ही दरवाजा खोल दिया। फिर मुझ पर निगाह बढ़ते ही बोली, अरे वाह, बड़े बन-ठन के बैठे, कोई खास बात? आओ मेरे पास बैठो। मैंने उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा तो उसने एकदम से बड़ी हैरत से मेरी जानब देखा, फिर आंखों तक मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा मुमकिन तो नहीं है, यकीन नहीं आ रहा। ये कहते हुए मेरे करीब आ गई। तभी मैंने कहा, संदीप कुंवर से क्या कुछ पूछा? मेरे यूं कहने पर वो एकदम से गड़बड़ा रही, फिर एकदम से हंसते हुए बोली, अच्छा तो ये तैयारियां हैं। मैं भी कहूं कि बरहमन गोश्त खाने की बात क्यों कर रहा है? मैंने कुछ पूछा है। मेरे यूं कहने पर वो संजीदा होते हुए बोली, अभी तक मैं उसकी सुन रही हूं। उसने सिवाय अपने बारे में और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में मजीद कुछ नहीं बताया। और न मैंने पूछा, अब तुम जो चाहो उससे पूछ लो, पहले खाना और फिर वो। मैंने कहा तो वो आंख मारते हुए गुनगुनाई, ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, और डिस्टर्ब भी नहीं करना। मैंने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी, फिर बाहर निकलती चली गई। मैंने नजीर तारक को फोन किया। उसने मुझे यही बताया कि वो होश में आ गया है, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से वो अभी तक अपने हवास में नहीं आ रहा है। उसके बदन के सारे कपड़े उतार लिए गए हैं। वो कपड़े और खिलौने मोइन इंजीनियर अपने साथ लेबोरेटरी ले गया है। वो सुबह तक अपनी कोई रिपोर्ट देगा। बास को भी हवास में आते हुए कुछ वक्त लगेगा। मैंने इसे यही हिदायत दी कि वो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक शय है। मैं बात कर रहा था कि दरमियान में फोन आने लगा। वो अरविंद का फोन था। मैंने इसका फोन रिसीव किया। आप अपना फोन बंद कर दे फौरन। क्या हुआ? मैं इस तरारी अंदाज में पूछा। आपका फोन ट्रेस हो गया है और इसकी लोकेशन पता की जा रही है। मैंने अभी तक लोकेशन का पता नहीं लगने दिया, लेकिन कोई पता नहीं, आप बंद कर दें। मैं बानीता कंवर के फोन से बात करता हूँ, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने फोन की बैटरी निकाली और उसे एक तरफ रख दिया। उसी लम्हे एक ख्याल मेरे दिमाग में रेंग गया। मैं इस पर सोचने लगा तो बहुत कुछ मेरे दिमाग में आने लगा। फिर मैंने अगले ही चंद लम्हों में इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। 2 मिनट नहीं गुजरे थे कि संदीप कौर अंदर आ गई। उसके हाथ में फोन पकड़ा हुआ था। वो मेरी तरफ देखते हुए एकदम से उस महक के हिसार में आ गई। जब तक वो बेड तक आई, उसकी हालत कुछ बदलने लगी थी। वो बोली कुछ नहीं, बस फोन मेरी जानब बढ़ा दिया। मैं फोन देखा, कॉल जारी थी। मैंने फोन कान से लगाकर हेलो कहा तो अरविंद कहने लगा, आपको याद है कि उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारकर घर तबाह किया था जब? हाँ मुझे याद है। मैंने कहा तभी मैंने महसूस किया संदीप मेरे साथ बेड पर बैठ गई है। उसका एक हाथ मेरे बाजू पर था और उसने अपनी थोड़ी मेरे शानी पर रखी थी। मैं इसलिए कह रहा था, अरविंद ने कहा, मैं तुम्हें चंद मिनट बाद फोन करता हूं। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मेरे यूं कहने पर संदीप चौंक गया, जैसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मैंने प्यार से उसके हाथ पर हाथ रख दिया तो उसने हमार और लूद आंखों से मेरी जानब देखा। मैंने उसके नरम होंठों पर उंगली फेरते हुए कहा, मेरे साथ बाहर चलोगी आवारागर्दी करने? हाँ क्यों नहीं, उसने हमार उलूद लहजे में कहा और मेरे साथ मजीद चिमट गई। तो फिर ऐसा करो, कुछ ढंग के कपड़े पहनो, लेकिन इससे पहले बानीता कंवर से कहो कि खाने वगैरह का कुछ न कुछ करे। कुछ भी न करे, हम बाहर जा रहे हैं, जल्दी। जी बेहतर, उसने कहा और किसी रोबोट की मानद उठ गई। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर फौरन ही फोन अरविंद को मिलाया। उसने फोन रिसीव कर लिया तो मैंने कहा, क्यों ना ये फोन ट्रैप के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, क्या ख्याल है? कैसे? उसने पूछा। मैं ये फोन किसी ऐसी जगह रख देता हूं जो यहां से दूर होगा, वही निगरानी की जाएगी। अगर वह फोन तक पहुंच सकते हुए तो पहुंच जाएंगे, वरना उनके बारे में मालूम हो जाएगा कि वो कितने पानी में हैं। ये आप कर सकते हैं तो कर लें, मैं इन्हें ट्रेस कर लेने में मदद दे दूंगा। उसने कहा, ओके तो फिर इंतजार करो फोन ऑन हो जाने का। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। फिर इंतहाई तेजी से नीचे चला गया। बास अभी तक हवास में नहीं था। तारक नजीर उसके पास बैठा हुआ था। उसके साथ निगरानी पर चंद लोग मामूर थे। उससे जरा फासले पर डॉक्टर मौजूद था। मैं नजीर तारक को इशारा करके डॉक्टर के पास जा पहुंचा। अब तबीयत कैसी है इसकी? खतरे में नहीं है, बस नॉर्मल होने में अभी चंद घंटे लेगा, डॉक्टर ने जवाब दिया।
کیا ایسا ممکن ہے کہ ابھی اسے بے ہوش کر دیا جائے صبح تک کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، بلکہ اس طرح وہ جلدی ریکور ہو جائے گا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ بس تو پھر ایسا ہی کریں، اس کے ساتھ صبح ہی ہوگی، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ میرے ساتھ نذیر طارق بھی اٹھ گیا۔ میں اسے باہر لے آیا، پھر اسے اپنا پلان بتایا۔ وہ فوراً ہی تیار ہو گیا۔ ہم نے ایک جگہ طے کر لی جہاں انہیں ٹریپ کرنا تھا۔ اس کے سب فائنل کر کے میں اوپر چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے سے فون لیا، وانیتا کنور کو اس کا فون واپس کر کے سندیپ کنور کو لے کر نیچے آ گیا۔ میں نے اپنے لیے 4 وہیل پسند کی۔ میں اس میں بیٹھا تو سندیپ میرے ساتھ پیسنجر سین پر آن بیٹھی۔ میں نے نذیر طارق کو اپنا فون دیا اور سندیپ کے ساتھ نکل گیا۔ نذیر طارق نے پہلے سیدھا مارکیٹ جانا تھا، وہاں کی ایک دکان سے ایک عام سا سیل فون لے کر میری سم کا سارا ڈیٹا فون میں رکھ کر وہ سم عام سے فون میں ڈال دینا تھی۔ ایک نیا نمبر اس کے پاس تھا، اس نے وہ اپنے فون میں ڈالنا تھا، پھر وانیتا کنور کو وہ نمبر بھیج دینا تھا۔ مجھے میرا فون وہیں مل جانا تھا جہاں نذیر طارق نے مجھے ملنا تھا۔ میں اب پرسکون تھا کیونکہ ٹریپ کے لیے انہوں نے پہلے پہنچ جانا تھا۔ جمال کیا سوچ رہے ہو تمہارے بارے میں نے رومانوی انداز میں کہا اور ساتھ ہی اس کے گالوں پر پھیلے ہوئے گیسو ہٹا دیے تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے ناز سے پوچھا۔ دیکھو سندیپ، میں نے جب تمہیں پہلی نگاہ میں دیکھا تھا تو یقین کرو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی حسین کہ ہاں وہ کسی لڑکی، کیوں اس دنیا میں چلی آئی تم جہاں ایک معمولی سی بلٹ اتنے بے مثال حسن کو ختم کر دے؟ تمہارا مقام تو شہزادیوں جیسا ہے، کوئی محل ہو اور تم اس میں راج کرو۔ میں نے ازحد جذباتی لہجے میں کہا جیسے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہو۔ آپ بھی خواب دیکھنے لگے ہو دوسرے مردوں کی طرح؟ اس نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مرد ہوں، ایک حسین لڑکی جو اپنے حسن میں یکتا ہو، اسے دیکھ کر کوئی خواب نہ دیکھے تو یہ حسن کی توہین ہے سندیپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف خواب ہی نہیں ہے میری جان، تمہیں دیکھ کر پہلی بار احساس ہوا ہے کہ تمہیں دور، کہیں دور وادیوں میں لے جا کر چھپ جاؤں، دنیا کی نگاہوں سے دور پرے، جہاں صرف تم اور میں ہوں اور بس۔ میں نے کہا تو اس نے اپنا سر میرے کاندھے پر رکھ دیا۔ کاش میں آپ سے پہلے مل لیتی، تمہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید تم موم نہیں کوئی پتھر ہو، مگر تمہارا دل تو شیشے کے جیسا ہے۔ اب میں سوچ رہی ہوں کاش میں اس دنیا میں نہ آتی۔ پھر سوچو جمال ہم کیسے ملتے؟ اسے دھیمے لہجے میں سکون سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا، اور سامنے مجھے ایک ریسٹورینٹ دکھائی دے رہا تھا تو میں نے 4 وہیل وہیں پارک کر دی۔ مجھے وہاں سے نکلنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ درکار تھا، وہ وقت میں نے وہیں بتانا تھا۔ ہم سکون سے ایک میز پر جا بیٹھے تو ویٹر آ گیا۔ میں نے کھانے کا آرڈر دیا اور سندیپ کے ساتھ باتوں میں کھو گیا۔ وہ اپنے بارے میں وہیں کچھ بتانے لگی جو وہ وانیتا کنور کو پہلے بتا چکی تھی۔ میں کھانے کے دوران اس کی باتیں سنتا رہا۔ یوں میں نے وہاں 1 گھنٹہ بتا دیا۔ کھانے کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور بظاہر یوں ہی آوارہ گردی پر نکلے تھے، لیکن میں اس طرف جا رہا تھا جہاں نذیر طارق پہنچ چکا تھا۔ وہ شہر قصور کے پاس ایک جگہ تھی، شہر سے پہلے ہی دائیں جانب ایک سولنگ نکلتا تھا۔ اس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک فارم ہاؤس قسم کا ڈیرا تھا۔ فون وہیں رکھ دیا گیا تھا۔ میں اس سے ذرا فاصلے پر 4 وہیل روک کر اتر گیا۔ سامنے ایک کنواں تھا، اس پر ایک زرد بلب روشن تھا۔ کنواں ختم ہو چکا تھا لیکن وہاں بیٹھنے کو بڑی اچھی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ سندیپ بھی اتر آئی۔ ہم دونوں چلتے ہوئے اس کنویں پر چلے گئے۔ وہاں چارپائیاں اور کرسیاں دھری ہوئی تھیں۔ میں ایک چارپائی پر جا کر لیٹ گیا تو سندیپ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے جان بوجھ کر بات چھیڑ دی۔ یہی کہ بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوش کچھ چاہتا ہے۔ میں اس زندگی میں نہیں آنا چاہ رہی تھی مگر آ گئی۔ کیا کرتی؟ مر جاتی۔ میں ادارے میں بھی آ گئی، وہاں جوائن بھی کر لیا، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنی سابقہ زندگی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی، لیکن جس دن مجھے کیپٹن شرما ملا اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی کا بوجھ اتار پھینکا۔ اس نے مجھے ایک نئی زندگی سے آشنا کیا۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے خواب میں بات کر رہی ہو۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے پوچھا، ایسا کیا تھا اس میں جو ایک ملاقات میں؟ نہیں ایسا نہیں کہ وہ مجھے پہلے دن ملا اور میں اس پر مر مٹی اور سب کچھ بھول گئی۔ وہ میرا انسٹرکٹر تھا۔ یہی خوشبو جو تم میں سے آ رہی ہے وہ لگاتا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوگی، وہ بھی مجھے بڑے غور سے دیکھتا۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے
دھیرے دھیرے ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ مجھے کبھی فلم دکھانے کے لیے لے جاتا، کبھی کسی ریسٹورینٹ میں، اور کبھی ویسے ہی لانگ ڈرائیو پر۔ ایک دن اس نے مجھے زندگی کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ یہ جذبے کچھ نہیں ہوتے، صرف مقصد ہوتا ہے، چھوٹا مقصد یا پھر کوئی بڑا مقصد۔ اس دن وہ میرے دماغ پر چھا گیا۔ میں نے اس کی ہر بات قبول کی اور کرتی چلی گئی۔ میں بدن کی لذت سے آشنا تھی، لیکن جو لذت اور سرور اس نے دیا، اس کی وجہ سے میں سب کچھ بھول گئی۔ مجھے لگا زندگی ہی یہی ہے۔ ہم ایک دن اور ایک رات دونوں تنہا ایک ہل سپاٹ پر رہے اور میری زندگی بدل گئی۔ واپس جب انسٹیٹیوٹ میں آئے تو میں ایک نئی سندیپ تھی، زندگی سے بھرپور۔ اس نے ہمار آلود لہجے میں کہا اور میرے ساتھ لپٹتی چلی گئی۔ اس کی گرم سانسوں کی حدت میں اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔